جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ آپ اندر چلی جائیں، شاہ صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ ملازم نے دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ذوالفشاں نے ایک بار سیڑھیوں کے کنارے پر استادہ سنگ مرمر بیلوں کو اور نیچے پھیلے لان کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بلند ہو گیا۔ اندر بڑے ہال میں اے سی کی خنکی اور نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ذوالفشاں نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، آنکھیں بار بار جھپک کر تا حد نظر دیکھا۔ کارپیٹ ہال کے سامنے عین وسط میں اوپر جاتی سیڑھیاں تھیں۔ میرون کارپیٹ سے ڈھکی سیڑھیوں پر سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ سب سے اوپر سیڑھی پر کھڑے سید عالم شاہ پر جا رکی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، ٹانگیں قدرے پھیلائے، وہ بڑی شان سے کھڑا تھا۔ لبوں پر بڑی مدھم خوبصورت مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہلکی سی چمک دیتے گرے رنگ کے کپڑے میں اس کا دراز قد نیچے سے بہت ہی نمایاں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذوالفشاں کو لگا جیسے وہ کوئی مجسمہ ہو، پتھر کا بے جان مجسمہ جو کبھی سانس نہیں لے گا، کبھی حرکت نہیں کرے گا۔ لیکن پھر پتھر کے مجسمے میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے ہاتھ کمر سے ہٹا لیے اور ریلنگ پکڑ کر آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ یوں تو ہمارے ہاں منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے لڑکی کا یوں سسرال آنا کافی معیوب جانا جاتا ہے، لیکن یقین کرو تمہارا آنا مجھے بالکل برا نہیں لگا، بلکہ میں بہت خوش ہوں تمہیں دیکھوں یا اپنے گھر کو۔ وہ اس کے قریب آ کر دھیرے سے ہنسا۔ ذوالفشاں سہم کر پیچھے ہٹی۔ مجھ سے ڈرو مت روشنی، اس نے مخمور آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کم از کم تمہارے وجود کے لیے میں بالکل بے ضرر ہوں۔ میں کچھ کہنے آئی ہوں آپ سے۔ اس نے تمام تر ہمتیں جمع کی۔ اچھا، وہ ہنسا۔ ضرور کہو، سامان پسند نہیں آیا کیا؟ دراصل وہ سب کچھ مکرم کے سپرد تھا، نہ جانے اس نے کیا بھیجا ہو۔ آخر آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ وہ تمام تر خوف پالائے طاق رکھ کر پھٹ پڑی۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو یوں دوسروں کی زندگیوں سے مذاق کرنے کا، دوسروں کی عزت سے کھیلنے کا؟ آپ نے وہ سامان میرے گھر کیوں بھیجا؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ کیا مل گیا آپ کو یوں اپنی دولت کی نمائش کر کے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں زبردستی ایک انگوٹھی پہنا دینے سے آپ میرا وجود اپنے نام لکھوا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں تھوکتی ہوں آپ کی دولت پر۔ ہاتھ میں تھامے انگوٹھی اس نے عالم شاہ کے سامنے دھری شیشے کی میز پر پھینکی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور میں کسی اور کی امانت ہوں سید عالم شاہ۔ آپ میری قیمت لگانے کا کوئی اختیار، کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ اسی طرح بیٹھا ایک ٹک اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اس کے آگے کوئی ایسا تماشا ہو رہا ہو جسے نہ تو وہ پسند کر رہا ہو اور نہ ہی ناپسند، بس دیکھ رہا ہو۔ آپ کا باقی سامان بھی جلد ہی پہنچتا ہوگا، اور برائے مہربانی اب میرا پیچھا مت کیجیے گا۔ میں ایک شریف عزت دار لڑکی ہوں۔ اس طرح کھیلنے کو آپ کو کئی اور چیزیں یقیناً دستیاب ہو سکتی ہوں گی۔ وہ واپس جانے کو مڑی۔ سنو، وہ عقب میں کھڑا ہو گیا۔ صرف اپنی کہو گی، سنو گی نہیں؟ کہیے۔ وہ مڑی نہیں، اسی طرح اس کی جانب پشت کیے بولی۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ غور سے دیکھو مجھے، سر سے پاؤں تک، پھر اس گھر کو دیکھو، ایک ایک چیز پر غور کرو اور پھر بتاؤ مجھے کہ کہاں کمی ہے۔ تمہارے انکار اور اس رویے کی وجہ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ میں وہ وجہ مٹا سکتا ہوں روشنی، لیکن تمہارے حصول کی خواہش نہیں۔ اب یہ خواہش بھی کہاں رہی؟ یہ جنون بن گئی ہے۔ میں نے کب آپ کی ذات میں نقص نکالا ہے یا آپ کی زر و دولت کو اپنی طمع کے ترازو میں تول کر کم پایا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بات اتنی ہے، میں آپ کے لیے نہیں ہوں، اور یہ بات میں خود کہہ رہی ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ کیا یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لہجے میں صفا کی در آئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اگر کسی دوسرے کے جیون میں اجالے بکھیرنے کی تمنا ہے تو اسے دل سے نکال پھینکو۔ آپ خود کیوں میری تمنا اپنے دل سے نہیں نکال دیتے
वो चीख कर उलझ गई। सैयद आलम शाह, दिल मंदिर होता है, सराय नहीं। इस मंदिर पर कोई एक शख्स जलवागर होता है, सिर्फ एक दफा, और फिर इसका दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तुम मुझे लफाजी से अपने अल्फाज से कायल नहीं कर सकती। इसने पैर जोर से मारा और पलटकर चंद कदम दूर चला गया। तुम जानती नहीं हो सैयद आलम शाह ने क्या मुकाम दिया है तुम्हें। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मिट चुका होता। इसका वजूद यूं मेरे सामने जबान खींच लेता, मैं उसकी, और तुम। वो पलटकर दोबारा उस तक आया। तुम ठुकरा रही हो इस नेमत को। कभी गौर किया है अपने 2 कमरों के उस बोसीदा मकान पर, जिसे मकान कहना, इसमें रहना तुम्हारी तौहीन है। मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता हूँ, यहाँ इस महल में, और तुम इनकार कर रही हो। मुझे आपसे और आपके उस महल से कोई दिलचस्पी नहीं। अपनी तहक़ीक़ पर वो सुन होकर सर्द लहजे में बोली, आपको आपका ये अजीमुशान घर मुबारक हो। मेरे लिए 2 तो क्या 1 कमरे का मकान भी काफ़ी है। अगर मैं उसमें अपने मनपसंद लोगों के साथ जिंदगी गुजारूं तो। बस। उसने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोक दिया। बहुत हो चुका। मैं सिर्फ एक बार फैसला करता हूँ, बार बार नहीं। जिंदगी में बहुत पहले तसव्वुर में एक तस्वीर बनाई थी और फैसला किया था जिंदगी में कभी भी कहीं भी वो तस्वीर पाई तो उसी को अपनाऊंगा, वरना सारी जिंदगी इस तरह गुजार दूंगा, अकेले तन्हा। अब वो तस्वीर मैंने पाली है तो उसे वहीं सजना होगा जहां मैं चाहूंगा, वरना सारे रंग बिखर जाएंगे। इसके लहजे की तह में सर्द मोहरी थी, धमकी थी। मैं सिर्फ अपने मंगेतर से शादी करूंगी, सिर्फ उसी के दिल और घर में सजूंगी, समझे आप। उसने एक एक लफ्ज रुक रुक कर अदा किया और आगे बढ़ी। सुनो रोशनी बीबी, अगर कुछ गैर मुतवक्का हो तो पलट कर यहीं आ जाना। तुम्हारे तमाम रास्ते अब यहीं तक आएंगे। पीछे से वो तमस्सखुराना लहजे में बोला। इसके कदम एक बार फिर थम गए। और हाँ, अब मैं तुम्हारे दर पर नहीं आऊँगा, तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। जितना कहना सुनना था वो सब कह सुन लिया। लफ्ज़ों को ज़ाया करना मुझे पसंद नहीं। अब इकरार करने आओगी तुम? उसने सर झटका और बाहर निकल गई। सीढ़ियों से लेकर रोश से गेट तक का तवील फासला उसने महज एक सांस में तय किया। गेट पर मुतय्यन चौकीदार को शायद अंदर से ऑर्डर आया था, इसने लपक कर गेट खोल दिया। वो गेट से निकलकर बाहर आई तो ठुटक कर रह गई। इस सुजुकी वाले को वो घर का पता लिखवा कर आई थी। वो सामान समेत हैरान और परेशान खड़ा था। बीबी जी, शुक्र है आप निकली तो। कब से खड़ा हूँ यहाँ। उसने दुआई दी। हाँ भाई, माफ करना। उसने चादर से पसीना साफ किया और मुड़कर खिड़की बजाई। जी। राइफल बरदार ने फौरन सर बाहर निकाला। ये तुम्हारे साहब का सामान आया है, अंदर रखो। जी बेहतर, मैं पूछता हूँ शाह साहब से। खिड़की बंद हुई। सुनो भाई, वो सुजुकी वाले की तरफ मुड़ी। ये लोग सामान लेने से इनकार करें तो तुम ले जाना, भला हो जाएगा तुम्हारा। खटखट करती वो आगे बढ़ गई। सुजुकी वाला हैरत से उसे देखता रहा। ऐसा आर्डर उसे जिंदगी में पहली बार मिला था। महाजबीन की आंखें हैरत से फट गईं। वो एक टुक उसे देखती रही। जूफी, तू इतनी बहादुर कब से हो गई? आपा, हर शख्स एक हद तक बुज़दिल होता है, इसके बाद बहादुरी की हद खुद ब खुद शुरू हो जाती है। सिर्फ बुज़दिली और बहादुरी की ही बात नहीं, बल्कि हर 2 मुतज़ाद जज्बे इसी तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो बड़ी गहरी सोच से वापस आकर बोली, अगर वो पकड़कर कैद कर लेता, इतना सा खौफ भी ना आया दिल में? तेरे पीछे हमारा क्या हाल हो जाता? कम से कम बता कर जाती। महाजबीन ने झुरझुरी ली। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा तुमने ये काम किया है। शेर की कछार में आंखें बंद करके चला जाना बेवकूफ़ी है, बहादुरी नहीं, समझी? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, जी चाहता है जाकर अम्मा को बता दूं। प्लीज़ आपी। उसने इल्तिजा की। और फिर सब कुछ तो करना ही था ना। मैं ना सही कोई और जाता। किसी और के जाने से क्या शेर की कछार बदल जाती? बल्कि हो सकता है उल्टा
نقصان زیادہ ہو جاتا۔ اماں سے سامان کی بابت کیا کہوں گی؟ وہی جو سچ ہے کہوں گی۔ سزوکی میں رکھوا کر سزوکی والے کو پتہ بتا دیا تھا، وہ چھوڑ آیا تھا۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے سر ہلایا۔ ویسے کیا کہا اس نے؟ خود کو رستم زمان سمجھتا ہے، بڑا غرور ہے اپنی وجاہت کا، دولت کا، طاقت کا۔ کہنے لگا، غور سے دیکھو مجھے، میرے گھر کو، اور پھر بتاؤ تمہارے انکار کی وجہ کہاں ہے؟ پھر کیا؟ میں نے صاف کہہ دیا، میں آپ میں اور آپ کے گھر میں رتی برابر دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ شان، یہ نمائش کسی اور کو دکھائیں، جو دیکھنا پسند بھی کرے۔ اچھا، مہاجبین ڈر گئی۔ غصہ نہیں آیا اسے؟ ہاں آیا تو تھا، وہ سوچ کر بولی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ اس نے بس اتنا بولا، اب میں تمہارے در پر کوئی درخواست لے کر نہیں آؤں گا۔ شکر ہے خدا کا۔ مہاجبین نے گہرا سانس لیا۔ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑ دیا اس نے، ورنہ اماں تو کہہ رہی تھی ایسے لوگ کالے ناگ کی طرح ہوتے ہیں، پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بس اب انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے بولی۔ اسے تو پکا یقین ہے میں اس کی وجاہت اور دولت سے متاثر ہو کر ایک دن ضرور اس کی جانب پلٹوں گی، بس اسی یقین میں عمر گزر جائے گی اس کی۔ دونوں بہنیں ہنس دیں۔ بڑے دن بعد وہ آیا تھا، بلیک جینز کے ساتھ اسکائی بلو شرٹ پہنے، بڑا تر و تازہ اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ ذوفشاں صحن میں گزرتے گزرتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ہیلو کزن، وہ ہلکے سے مسکرایا۔ ذوفشاں کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کو دیکھ کر اطمینان، دل اور سکون کے جذبات سے لبالب بھر جایا کرتا تھا۔ نظر لگاؤ گی؟ اماں کی موجودگی کے باوجود معصومیت سے پوچھنے لگا۔ وہ جھینپ کر آگے بڑھ گئی۔ چائے چاہیے؟ پیچھے سے وہ زور سے بولا۔ وہ کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ اسے 100% یقین تھا ابھی چند لمحوں میں ہی دروازے پر موجود ہوگا، اور اس کا یقین درست نکلا۔ کیا بات ہے، بڑی خاموش ہو۔ حسب معمول دونوں ہاتھ دروازے کے دونوں جانب جمائے وہ کھڑا تھا۔ اتنے دن بعد آئے ہو؟ وہ شکوہ کرنے کی عادت تھی تو نہ، پھر بھی نہ جانے کہ اس کے لبوں سے فقرہ پھسل ہی گیا، شاید اس لیے کہ پچھلے کافی دنوں سے وہ بڑی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ ایسے میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت کر ہی بیٹھتا ہے۔ اوہو، اسے شدید حیرت ہوئی۔ یہ آپ فرما رہی ہیں؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، دل کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ میں تو خود اسی لیے نہیں آ رہا تھا کہ ملکہ عالیہ کو روز روز آنا ناگوار گزرتا ہے۔ مجھے کیا علم تھا یہاں کوئی دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھا ہے۔ اف اف، اس نے لب دانتوں میں دبائے۔ اسٹارٹ لے لیا آپ کی خوش فہمیوں نے؟ ارے یہ خوش فہمیاں تو مزید مستحکم ہو گئی ہیں محترمہ، اور اس استحکام میں آپ کی ذرا نوازیوں کا پورا ہاتھ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس دن بھلا کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ مسکراتے ہوئے شرارت سے پوچھنے لگا۔ کیا؟ یہی کہ میری قربت ہی تمہاری اصل مسرت ہے، اور یہ کہ میرے دور جانے سے آذر۔ اس نے جلدی سے اس کی بات کاٹ دی اور منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ اب کیوں منہ چھپاتی ہو؟ اپنے ہی الفاظ سے شرماتی میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا ہے۔ تم جاتے ہو یہاں سے یا اماں کو بلاؤں؟ کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دھمکایا۔ جاتا ہوں بھائی، اس نے سہمنے کی اداکاری کی۔ میری چائے تو دے دو، چائے بن جائے گی۔ اس نے کپ اس کو تھما دیا۔ جا رہے ہیں ہم، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ جائیے جائیے، وہ بھی مسکرائی۔ آپ کبھی نہیں آئیں گے یہاں؟ وہ آگے بڑھ گیا۔ آدر، اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ پہلے ہی نہ جانے کیوں اس کا دل کہیں اندر ہی اندر ڈوبا ہوا تھا۔ آدر کے ذرا سے مذاق پر چند لمحے کو رک سا گیا۔ خدا نہ کرے، اس نے بڑبڑا کر کہا۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ کام سے فارغ ہو کر وہ نکلی تو دیکھا وہ مہجبی سے محو گفتگو تھا۔ ذوفشاں کا دل ان دونوں کو یوں سنجیدگی سے باتیں کرتا دیکھ کر سہم گیا۔ کہیں آپا نے اسے عالم شاہ کے بارے میں تو کچھ نہیں بتا دیا؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ یہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں چہرے پر؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو وہ چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ مہجبین باجی پٹیاں پڑھا رہی ہیں مجھے، وہ شرارت سے بولا۔ کیسی پٹیاں؟ کہتی ہیں اس بے وقوف کے آنسوؤں پر مت جاؤ اور قسمت سے ملنے والا اچھا موقع گوانے کے بجائے اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ۔
वादे रहे वो बेवकूफ़ लड़की तुम हो। फिर वो बेनियादी से पूछने लगी। फिर उसने सर्द आह भरी। फिर क्या? जाहिर है मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। वो लड़की कितनी ही बेवकूफ़ सही, उसकी मुस्कुराहटें मुझे अजीज हैं। नहीं, अगर तुम जाना चाहो तो बेशक चले जाओ। इसके सर्द आह भरने पर वो गुस्से से बोली, अच्छा वाकई? रोगी तो नहीं ना? रोना या मुस्कुराना मेरा मामला है, तुम्हें इससे क्या? वो तुनक कर बोली। अरे, वो हंस दिया। ये यकायक लड़ने झगड़ने पर क्यों उतर आई? खैरियत तो है? वो चुपचाप बैठी पाँव के नाखून देखती रही। अजीब सी हालत हो रही थी। इससे मिलकर खुशी भी हो रही थी। इस पर बिगड़ने का लड़ने का दिल भी चाह रहा था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आदर, ये आलम शाह कौन है? महाजबीन ने अचानक पूछ लिया। ज़ुल्फ़िशा ने घबरा कर उसे देखा। नजरों ही नजरों में लर्जिश भी की, लेकिन वो बेनियाज बन गई। आलम शाह कौन? वो हैरानी से पूछने लगा। सैयद आलम शाह। मैं भी जानती तो नहीं, बस नाम सुना है। पता नहीं कौन जिक्र कर रहा था। सैयद आलम शाह। वो सोचने लगा। नाम तो जाना पहचाना सा है। गालिबन ये सैयद फरमान शाह के बेटे का नाम है। वो कौन है? नहीं थे। बड़ी ही कद-आवर शख्सियत थी जनाब की। सियासत वगैरह में भी मुलव्विस थे, इसीलिए मशहूर भी काफ़ी हैं। अब तो उन्हें फौत हुए तकरीबन 2 से 3 साल हो ही गए हैं। उनका बेटा मशहूर हो रहा है बड़े हलकों में। गालिबन शाह ही है। उसका नाम आपने कहाँ सुन लिया? उसके बारे में पता नहीं, कोई जिक्र कर रहा था। मुला ताल्लुक़ से कंधे उचका कर बोली। वैसे बड़ा बाअसर होगा ना? जाहिर है। वो हंस दिया। ऐसे लोग भी बाअसर ना हुए तो क्या हम और आप जैसे होंगे? इसके बाअसर होने को तो इसके बाप का नाम ही काफ़ी है। ये क्या फजूल किस्म की बातें लेकर बैठ गए हो? ज़ुल्फ़िशा, जो खामोशी से दोनों की बातें सुन रही थी, झुंझुला कर बोली। करने को और कोई बात नहीं रह गई क्या? अरे क्या हुआ है? वो हैरानी से पूछने लगा। ज़रा सी बात पर आज बिल्ली की तरह झपट रही हो। हाँ, कभी कभी दौरा पड़ता है इसे। माजबिन ने उसे देखा। तुम फिक्र मत करो, खुद ही ठीक हो जाएगी। वैसे तो मैं भी काफ़ी अरसे से जानता हूँ इसे। वो बददस्तूर हैरान था। मैं तो ये दौरा पहली मर्तबा देख रहा हूँ। क्या है आदर? वो शर्मिंदा हो गई। तुम तो पीछे पड़ जाते हो हर बात के। तुम लोग बैठो, मैं खाना निकालती हूँ। महाजबीन उठकर अंदर चली गई। उजाला, वो उसके जानिब पूरे हवासों के साथ मुतवज्जह हुआ। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। वो नजरें चुरा गई। कितना मुश्किल था इससे झूठ बोलना। दिलों में बसाकर खामोश प्रतिश की जाए जिनकी, उनसे मामूली सा धोखा देना भी कितना अजियतनाक होता है। उजाला, उसके लहजे में दुख दर आया। मुझसे झूठ बोल रही हो? मुझसे? कौन सा झूठ? उसने हैरानी की एक्टिंग की। क्या कह रहे हो? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम परेशान हो, बेहद परेशान। वो उसकी आंखों में एक टुक देखता हुआ बोला। कोई बात है जो तुम्हारे असाब पर इस तरह सवार है कि तुम्हें खुद अपनी हरकत का अंदाजा नहीं हो रहा। इस बुरी तरह से उलझा हुआ मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। और वो बात जो तुम मुझसे छुपा रही हो, हैरत हो रही है मुझे। मालूम नहीं आदर, तुम क्या समझ रहे हो? वो इस्तराबी तौर पर उंगलियां चटकाने लगी। मेरे साथ अगर कोई मसला होता तो क्या मैं छुपाती तुमसे? और फिर भला क्या बात हो सकती है? तुम खुद सोचो। मालूम नहीं। वो आहिस्तगी से बोला और खामोश हो गया। साफ जाहिर था उसे ज़ुल्फ़िशा की बात का एतबार नहीं था। वो महज इसके नर्वस होने पर चुप हो गया था। वो थोड़ी देर घुटनों पर सर रख के बैठी रही, फिर उठकर बाहर चली गई। कई दिन की खामोशी के बाद बहुत से दिन चुपचाप गुजर गए। जिंदगी मामूल पर आ गई। महाजबीन और अम्मा बज़ाहिर बड़ी मुतमईन हो गई थीं। जैसे जो कुछ हुआ था वो महज एक मामूली सा नागवार वाक़या था। वो वाक़या चंद ही दिनों में जहनों से उतार फेंकने में वो दोनों तो कामयाब हो गई थीं। इसकी हालत अलबत्ता बड़ी ही मुख्तलिफ थी। वो चुप थी, खामोश थी, बज़ाहिर मुतमईन भी थी और खुद में मगन नजर भी आती थी, लेकिन अंदर से वो कितनी उलझी हुई थी, कितनी परेशान, कितनी नाआसूदा थी, यह वही जानती थी। सैयद आलम शाह के घर से निकलकर
उसे यूं लगा जैसे जिंदगी का वो छोटा सा मगर अहम और काफी नाखुशगवार बाब वो हमेशा के लिए बंद कर आई है। इसने खुद को तसल्लियां भी दी थीं और मुतमईन भी हुई थी, मगर महज एक कलील अरसे के लिए अचानक ही इसका दिल एक नए सिरे से बेचैन हुआ था। एक दबा दबा लाशऊरी खौफ यकदम शऊरी सतह पर आकर चारों तरफ फैल गया था। इसके अंदर तूफान बर्पा हो गया था। छनाके से होते रहते थे जैसे कुछ टूटता हो, लेकिन हाथों से फिसल भी रहा हो, जमीन से टकराने वाला हो। शऊर पहले से इसके गिरने की, टूट कर बिखरने की सदा सुन ले। ऐसा लगता था कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन होने वाला है। इसकी जिंदगी की आसूदगी और खुशियां बिखरने वाली हैं, फिजा में तहलील होने वाली हैं। वो सहमी थी, डरी हुई थी, लेकिन खुद पर काबू रखती थी। इतनी परेशानियां दूसरों में तकसीम करने के हुनर से वो कतन वाकिफ न थी, ना ही होना चाहती थी। सो महजबीन की तरह वो आसूदा भी नजर आती थी और अम्मा की तरह मुतमईन और बेनियाज भी। अम्मा ने उसे यूनिवर्सिटी जाने से कतन मना कर दिया था। अफसोस तो उसे बेहद हुआ, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी ये इसके हक में कितना बेहतर था। अपनी इज्जत उसे हर शय से बढ़कर अजीज थी। उस दिन वो सुबह कपड़े इकट्ठे करके धोने बैठ गई। 2-3 दिन के बाद वो आसमान पर से बादल गायब पा रही थी और सूरज चमक रहा था। सो उसने अंग्रेजी के मुहावरे के मुताबिक सूरज के चमकने का पूरा फायदा उठाते हुए कपड़े धोना मुनासिब जाना। जिस वक्त दरवाजे की बेल बजी, महजबीन बावर्ची खाने में रोटी पका रही थी और अम्मा जोहर की नमाज की नियत बांधे हुए थी। दूफिशा ने बाल्टी में हाथ खंगाले और दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अरे आसिम भाई आप! उसे दरवाजे में खड़े आसिम को देखकर जाबजा तौर पर हैरत हुई कि वो उनके घर बेहद कम आते थे और फिर यूं बेवक्त। वापस चला जाऊं? वो मुस्कुराए, लेकिन अजीब तरह से। अरे नहीं, अंदर आइए ना। इन्हें साथ लिए वो अंदर दाखिल हुई। आप बैठें, मैं आती हूँ। अम्मा नमाज पढ़ रही हैं, बस पढ़ ही चुकी होंगी। वो ये गौर किए बगैर कि वो कितने परेशान और उलझे हुए लग रहे थे, फटाफट किचन में चली आई। आपा जरा बताओ कौन आया है? कौन? आदर होगा, उसने रोटी सेकते हुए लापरवाही से कहा। उसने शरारत से नफी में सर हिलाया। गलत, लेकिन सही से करीब। महजबीन यकायक समझ गई। वो आए हैं? वो शर्मीलेपन से बोली। क्यों? वो ही आए हैं और आने का मकसद फिलहाल वादे नहीं। वो हंसी। आप फटाफट खाना तैयार कर लें और हाँ, पहले शरबत बना लें। मैं तब तक उनके पास बैठती हूँ, अकेले बैठे हैं। वो वापस कमरे में चली आई। जी जनाब, इसके पास बैठते हुए वो बोली। आप सुनाएं, कैसे मिजाज हैं? ठीक ही हूँ, उन्होंने हथेलियां रगड़ी। दूफी आदर आया था क्या? कल परसों नहीं, वो सोचते हुए बोली। आज तो बुध है ना, वो हफ्ते के दिन आया था। खैरियत? कोई खास बात है क्या? हफ्ते के दिन आया था? उन्होंने इसका सवाल नजरअंदाज किया। कुछ कह रहा था क्या? कहीं जाने के बारे में? कहीं जाने के बारे में? वो उलझ कर रह गई। कहीं चला गया है क्या? कहाँ गया है? बताकर नहीं गया क्या? पैर दर पे उसने कई सवाल कर डाले। कौन गया है? कहाँ गया है? अंदर आती अम्मा इसके अंदाज से समझ गई कि मसला गंभीर है। अस्सलामु अलैकुम। आसिम खड़े हो गए। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, बैठो। क्या बात है? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वो मुमानी जान आज़र। क्या हुआ आज़र को? अम्मा बेतरह घबरा गई। वो 2 दिन से घर नहीं आया है। दूफिशा के ऊपर हजारों समंदर का पानी फिर गया। वो जामिद और साकित बैठी रह गई। घर नहीं आया? अम्मा को ताजुब हुआ। लेकिन क्यों? कहाँ गया है? यही तो इल्म नहीं है। घर से किसी दोस्त के यहाँ जाने का कह कर निकला था। रात को नहीं लौटा तो हम लोग समझे कि दोस्त ने रोक लिया होगा। अमूमन वो यूं ही करता है। लेकिन वो दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर रात भी। मैं आज सुबह से उसका पता कर रहा हूँ। हर दोस्त से पूछ लिया, वो किसी के घर नहीं गया। हर उस जगह जहाँ उसके मिलने की उम्मीद थी मैं हो आया हूँ। खुदा जाने वो कहाँ रह गया है। वो इस तराब में उठकर खड़ा हुआ। खुदा खैर करे। अम्मा ने दिल थाम लिया। अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे मेरे बच्चे को। कहाँ रह गया दूफी? बेटा ज़रा पानी ला दे मुझे। वो किसी बुत की तरह साकित थी।
रोबोट की तरह उठकर कमरे से निकल गई। दूफी किचन से निकलती महाजबीन ने उसका चेहरा देखा, सफ़ेद पड़ता हुआ, और रुक गई। खैरियत तो है? जी, वो ज़ेर लब बोली। आदर? क्या हुआ आदर को? खुदा न करे उसे कुछ हो। वो शदीद करब के आलम में बोली। बस वो 2 दिन से घर नहीं लौटा। 2 दिन से घर नहीं लौटा? क्यों? किससे लड़ाई हो गई क्या उसकी? नहीं तो। उसने नफ़ी में सर हिलाकर लब काटे। वो कब लड़ता है किसी से? वो पानी लेकर लौटी तो अम्मा को सोफे पर नीम दराज पाया। उनका बीपी लो हो गया था। दूफी, तुम मुमानी का ख्याल रखो, नमक मिला पानी दो। आसिम ने उसे हिदायत दी। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आसिम भाई? उसने तड़प कर पूछा। वो तजब्बुब से रुक कर बोला, हॉस्पिटल शोबाए हादसात। पानी का गिलास इसके हाथ से निकलकर जमीन से टकराया। एक छन्नाके के साथ रेजा रेजा हो गया। लेकिन ये आवाज़ तो वो बहुत पहले ही सुन चुकी थी। दोपहर ढल गई। जलाती सुलगाती हजारों वसवसे दिल में जगाती शाम उतरी तो अम्मा उठकर बैठी। दूफिशा, महजबी बेटा, मेरी चादर ले आओ। वो चारपाई से उतरते हुए बोली। दूफिशा बरामदे की दीवार से टेक लगाए एक टुक सीध में देखती रही। अम्मा की आवाज़ पर उसने खाली खाली नजरों से उनकी जानिब देखा और एक साथ आह भर कर खड़ी हुई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मा, महाजबीन ने फिक्रमंदी से कहा। ठीक है मेरी तबीयत, मेरा बच्चा साथ खैरियत से घर लौट आए तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। न जाने कहाँ रह गया, ऐसा कभी किया तो नहीं उसने। अरे दूफी, चादर ला दे मेरी। कहाँ जा रही हैं अम्मा? उसने लब काटे। कहाँ जा रही हूँ? उन्हें ताज्जुब हुआ। अरे तेरी फुप्पी के यहाँ, और कहाँ? दोपहर से तो मेरे हाथ पैर में दम नहीं था। उठती बैठती तो दिल ठहरता था। अब जाकर खैर खबर तो लाऊं। तेरी फुप्पी का जाने क्या हाल होगा। खुदा करे बच्चा साथ खैरियत के लौट आए। ज़ूफ़िशा का दिल एक बार फिर तेज तेज धड़कने लगा। आदर के मुतालिक ये बातें उसका दम घोंट रही थीं, जान खींच रही थीं। मैं भी चलूं अम्मा? उसने आंसू पीते हुए रुंधी आवाज़ में कहा। मैं भी अम्मा, महाजबीन भी बोली। जब से इसकी मंगनी आसिम के साथ तय हुई थी वो फूफी अम्मा के घर नहीं जाती थी। आसिम से भी पर्दा किया करती थी, लेकिन फिल वक्त मामले की नौयत सरासर मुख्तलिफ थी। अम्मा ने एक नज़र दोनों को देखा और खामोश हो रही। दरवाजे पे ताला डालकर उन्होंने बराबर वाली खाला को अब्बा के लिए मैसेज दे दिया कि वो भी फूफी अम्मा के घर पहुंच जाएं। घर तक पहुंचते पहुंचते ज़ूफ़िशा के अंदर कितने ही मौसम तब्दील हुए। कभी ख्याल आता वो लौट आया होगा, सहन में बैठा चाय के साथ फूफो अम्मा की झिड़कियाँ और सख्त सुस्त सुन रहा होगा और हंसता जाता होगा। इस ख्याल के साथ ही उसके अंदर फूल खिल जाते, सुकून इत्मीनान की लहरें मौजूदन हो जाती। फिर अचानक ही ख्याल का दूसरा रुख उभरता, उसका दिल सहम जाता, आंखें भर आती। अगर वो कहीं भी ना मिला तो फिर इसके अंदर एक शोर बर्पा हो जाता, तूफान मच जाता। साएं साएं का शोर हर सोच हर आवाज़ को दबा देता। तमाम रास्ता वो इसी कैफियत से गुजरती रही। अम्मा और महाजबीन दोनों खामोश थीं। महाजबीन का चेहरा भी गुमाजी कर रहा था कि वो भी ज़ूफ़िशाही की तरह कैफियत से दो-चार है। अलबत्ता अम्मा का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उनके लब वक्फे वक्फे से हिलते थे, जैसे कुछ पढ़ते हों। फूफी अम्मा के घर की बैल बजाते हुए इसके हाथ वाज़े तौर पर कांप रहे थे। दरवाज़ा फूफा ने खोला तो अस्सलाम वालेकुम कहती हुई वो और महाजबीन एक साथ अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। उनके लब महज होले से हिले। कपकपाते हाथ ने बारी बारी दोनों के सरों पर धरा। उनके चेहरे से इन सबको अंदाजा हो गया कि वो अब तक नहीं लौटा। फूफो अम्मा सबसे पहले ज़ूफ़िशा उनसे लिपट गई। क्यों नहीं लौटा वो अब तक? उसकी आवाज़ में लर्जिश और नमी दोनों ही थीं। दुआ करो बेटा। उन्होंने इसके साथ साथ खुद को भी तसल्ली दी। मेरा बेटा जहाँ कहीं हो खैरियत से हो। आसिम चुपचाप सर झुकाए बैठा था। इसके चेहरे पे तफर्रुकात का जाल तना हुआ था, लब भींचे हुए थे। आसिम भाई, वो उनसे मुखातिब हुई। कुछ पता नहीं चला ज़ूफ़ी, वो बेबसी से बोला। हर जगह छान मारी मैंने। उसने सख्ती से आंखें मींच लीं। सब चुपचाप सर झुकाए बैठे रहे।
एक अजीब कैफियत थी जिससे सभी गुजर रहे थे। इंतजार का कर्ब था, उम्मीद की किरणें थीं, वसवसों के साए भी साथ साथ चल रहे थे। थोड़ी ही देर में अब्बा भी चले आए। उन्हें तो सिरे से किसी बात का इल्म ही न था। गुफ्तगू नए सिरे से शुरू हुई तो वो मजीद कर्ब से बचने के लिए ऊपर चली आई। उसका कमरा वैसा ही था, हमेशा की तरह साफ सुथरा और सादा। किताबें मेज पर जमी हुई थी। कोने में बिछे पलंग की चादर बेशकन थी। दीवार पर लगी खूंटी पर इसके इस्त्री शुदा कपड़े लटके हुए थे। हर शय को देखते हुए, बेख्याली में हर शय को उंगलियों से छूते हुए, ना जाने उसे क्या हुआ, वो फूट फूट कर रो दी। आदर, आदर, कहाँ चले गए हो? तुम किस आग में झोंक गए हो? क्यों इम्तिहान लेने पर तुले हो? ये इम्तिहान तो बेहद जानलेवा है। लौट आओ आदर, आ जाओ आदर। इसके बिस्तर पर झुकी वो मुसलसल रोती रही। फिर अचानक उसने सर उठाया और तहय्युर से सामने की दीवार को घूरने लगी। लेकिन वो दर हकीकत कहीं और देख रही थी, किसी और जगह पर थी। कुछ और आवाजें इसके कान में शीशे की तरह उतर रही थीं। सुनो रोशनी बीबी, अगर कुछ गैर मुतवक्का हो तो यहीं लौट आना। तुम्हारे तमाम रास्ते अब यहीं आएंगे। वो तस्वीर मैंने पाली है तो उसे वहीं सजना होगा जहां मैं चाहूँगा, वगरना सारे रंग बिखर जाएंगे। हाँ, दुरुस्त कहा था उसने। तस्वीर के रंग बिखर रहे थे, नमकीन आंसुओं के साथ घुल घुल कर बह रहे थे। तस्वीर बेरंग हो रही थी, उजड़ रही थी। तो क्या सैयद आलम शाह ने? मीकान की अंदाज में खड़े होते हुए इसने खुद से ही सवाल किया। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसके दिल ने गवाही दी। तब उस पर अदराक हुआ कि जिन लफ्जों से वो मुतमईन होकर लौटी थी, वो दर हकीकत इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इत्मीनान लूटने के लिए अदा हुए थे। वो तो समझी थी इसके अल्फाज में रिहाई का परवाना था। अब उसे एहसास हुआ वो जुबान तो उसे उम्र कैद का पैगाम दे रही थी। सैयद आलम शाह, सैयद आलम शाह, तुम इस दर्जा भी गिर सकते हो? दीवार को मुसलसल घूरते शदीद हैरानी के एहसास तले वो सिर्फ यही सोच सकी।